defined as a complete shear force diagram and bending moment diagram. So we'll discuss one by one cases. So the first case that I'm going to take is that is your cantilever beam with point load, right? Cantilever beam with point load. Okay. So let's first draw this cantilever beam with point load, right? So this is your load diagram. This one is your load diagram, right? So your first aim is to calculate the shear force and bending moment equation, and based on the shear force and bending moment equation you can draw shear force diagram and bending moment diagram. So we can do one thing, like we just draw a line exactly below the load diagram. So let's first draw this. Also draw a straight line for this, right? So let's start with shear force. So for finding the shear force, we know that let's take an section x-axis, which is x distance from the P point, or you can say load. So at, if we want to find out, let's find out what is the shear force at x section. So हमको पता है कि लेफ्ट साइड में जो भी फोर्सेस नजर आ रहा है, तो इट इज डिफाइंड एज माइनस पी, दैट इज अ फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमको नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ हियर x की वैल्यू 0 है, हियर x की वैल्यू जो है वो l है, तो वी कैन से दैट एट x इक्वल्स टू 0 आपका जो shear force है that is equals to minus p, and when at x equals to l your shear force is also minus p, right? So it means what, कि shear force को अगर आप imagine करो, the shear force does not, the value of shear force, or you can say the magnitude of shear force does not depend on the distance. It means what, at x equals to 0 what is the magnitude, it is of negative, तो magnitude जो है वो minus p है, ठीक है। अब जैसे जैसे x की distance increase होती जा रही है, you will see that magnitude is remain constant, right? So the magnitude is of p in the negative direction, and this gives you the shear force condition. So this is your first shear force. You can say that this is your shear force diagram, right? The next thing that we are going to see is your bending moment. So let's understand bending moment. When I'm going to say the bending moment, let's first establish an equation of bending moment. So what is at x distance? So let's find out what is the bending moment. At x there is a force जिसका मैग्नीट्यूड p है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है x डिस्टेंस पे, तो वी कैन राइट माइनस p इंटू एक्स। अब ये सेक्शन को आप इंक्रीज करते जाओ x की वैल्यूज l तक, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा दैट वी आर गोइंग टू सी। सो दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर 0 to l. So when I say at x equals to 0, when I say at x equals to 0, your bending moment is 0. At x equals to L, your bending
moment is minus P into L. So you can see that this is the equation of the bending moment, and in this equation you can find that bending moment equation is directly proportional to distance. मतलब जैसे जैसे distance बढ़ता जाएगा उसके according bending moment equation भी बढ़ता जाएगा. So how we are going to draw this? Let's see this condition. So at x equals to 0, you can see the the magnitude of bending moment is 0. So it means it should lie at this particular point, right? At x equals to L, when I say at x equals to L, its bending moment is the magnitude is of minus PL. So we can write it minus P into L. From this point to this point, it becomes a straight line. So we can define a straight line equation. So this is the bending moment equation of a cantilever beam with point load. So here it is also defined as a negative conditions. So is that clear to everyone? How am I going to define how I have defined this cantilever beam with a point load? So the equation, you can see the diagram is to be drawn only with the help of the equation. ठीक है, तो जैसे आपकी shear force की equation बनी या bending moment की equation बनी, based on this we have defined the law, right? Okay, let's move forward. Condition number 2. Condition number 2 is defined as your cantilever beam with UTA, right? Okay. I'll start with the fresh one. Cantilever beam with UDL. UDL means uniformly distributed load, right? Let's draw the diagram first of UDL. Now this is your UDL, and suppose it is given as W. So the unit W is also defined as kilonewton per meter. This is, you can say, the length of the cantilever beam, right? Now we are going to give some space below the load diagram, right, for drawing this one. So the first step, again, let's first draw a section. This is your x section, right? From this, x value is to be defined. So let's first define shear force at x, right? When I'm telling you the shear force at x, so first we need to find out in UDL is what is the total load acting on this x distance. So we can say that the total load is acting is W into x, right? And this is a vertical downward direction, so we can put minus sign. So we can write minus Wx kilo Newton is the load acting vertical downward direction at a distance of x, right? Now you can see that if you shift this section toward left side, this equation will remain same. So we can say that at x equals to 0, your shear force at x equals to 0, your shear force value is 0. At x equals to L,
your shear force magnitude is minus W into L, right? So it means what? Here in this case means here in UDL, your shear force is directly proportional to X, right? So here the values of X equals to 0, here the values of X equals to L, right? So let's first draw a line, right? So at this point, your shear force is of 0. At this point, X की values को अगर आप देखोगे तो magnitude is defined as minus W L, right? अब curve कौन सा होगा from this point to this point? You can see that the shear force is directly proportional to X. So it means it is a straight line. So we just draw a straight line to this, right? So this is your shear force diagram of negative conditions, right? Now, how we are going to draw a bending moment, right? So before drawing this bending moment, we need to first identify bending moment equation. So let's establish bending moment. What is the magnitude, or you can say the equation of bending moment at x distance? For bending moment, location of load is also very much important. So here in this case, you can see that this at x distance load is total load is minus W into X. This is the total load, right? But it is always acting at the center of this one. So the center is defined as by X by, right? So the moment is defined as Wx to X by 2, which is also defined as minus Wx square by 2. So this is your magnitude, right? Now you can say at x equals to 0, your bending moment is defined as 0. Similarly, when x is equals to L, your bending moment's magnitude is defined as minus W L square by 2, right? So based on these conditions, you can further draw this diagram, right? And this diagram is to be drawn. See, at x equals to 0, bending moment is 0. And at x equals to L, your bending moment's magnitude is minus W L square by 2. So these are the 2 points that you are, due to extreme points का जो magnitude that you are getting, right? In between curve कैसे follow होगा? So you can see that here bending moment is minus W x square by 2. मतलब जो this is defined as a quadratic curve, right? So from this point to this point, this behaves as a quadratic nature, right? So this is, you can say, the magnetic diagram of your bending moment. That is also defined as a negative conditions, and we can draw each and every point. हर एक section पे आप इस values को define कर सकते हो, right? Based on this, let's take one example. I want everyone please solve these questions and let me know. This W is 2 kilo Newton per meter. This P is your 5 kilo Newton and length is your 10 meter. Just tell me the bending moment magnitude at the extreme point and its diagram. Bending moment and shear force, both, right? So what is the meaning of shear force? So all the vertical
डायरेक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बीम इज डिफाइंड एज शियर। तो यहाँ पे इस डायरेक्शंस को अगर आप इस चीजों को समझने की कोशिश करो, आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? आपके पास फोर्सेस लग रही है -5 किलो न्यूटन जो कि पॉइंट लोड है, राइट। अलॉन्ग विद दैट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में जितना भी लोड है, राइट, वो लग रहा है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस, यहाँ पे 2 दिया है तो 2 इंटू एक्स इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या? यस सर। राइट। तो आपने क्या देखा कि -5 - 2 इंटू एक्स इज द मैग्नीट्यूड जो टोटल लोड आ रहा है। यू ऑलवेज सी कि टुवर्ड लेफ्ट साइड आपके जितने भी फोर्सेस हैं वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट यू आर गोइंग टू अकाउंट इन दैट मैनर। So here in this case shear force at x is equals to -5 - 2x, and this equation is valid from 0 to your 10, मतलब till 10 तक ये इक्वेशन वैलिड रहेगी। कैसे? अब यहाँ पे see this condition at x equal to 0, when you are going to apply 0 value in this equation, what you will get is shear force की वैल्यू मिल रही है -5। Similarly, when you have x is equals to 10, your shear force is equals to 20 minus 5, that is equal to -25. It means what कि जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो यहाँ पे shear force की वैल्यू 0 नहीं है, इसका एक मैग्नीट्यूड है जो कि डिफाइन कर रहा है कहाँ से? -5, राइट। एट x की वैल्यू जब आपने 10 रखा तो आपको जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है ये कितना है? -25। अब यहाँ पे देखो आप, जब अगर ये यूटीएल नहीं होता, राइट, if in this case if UDL is not there, तो आपका सिर्फ पॉइंट लोड की वजह से सिर्फ इतना अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स रहता, बट इसमें पॉइंट लोड विद यूडीएल आने की वजह से ये आपका जो है मैग्नीट्यूड इतना बढ़ गया। क्लियर है? नाउ दिस इज आल्सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की का मैग्नीट्यूड है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन या सेक्शन पे यू कैन फाइंड आउट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ सी द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस। Now listen properly. Let me know my voice is audible to everyone, right? Yes sir. Great. So just see the bending moment conditions. When I say a bending moment, so let's first establish an equation of bending moment, right? Consider x-x section. Based on this x-x sections, you will find P into x. Because of this point load, एक आपको moment मिलेगा जिसका magnitude होगा -p into x, right? That is of this one. सेकेंड आपको जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है आपका इस यूडीएल की वजह से लग रहा है, जिसका आपका इक्वेशन में लिखो कितना जाएगा माइनस, अब इसकी वैल्यूज कितना है 2, राइट, इनटू एक्स। तो ये तो वो टोटल लोड हुआ जो कि इस एक्स सेक्शंस पे एक्ट कर रहा है, बट इस लोड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर है? तो हमको पता है कि दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज द सेंट्रॉइड x by 2, that is a half of this value. So it is defined as -2x into x by 2, that ये 2 cancel out और आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस p की वैल्यू 5 थी तो we can write -5x minus x square, right? Now this equation is also valid till of 10, right? So at x equals to 0, your bending moment, right, at x equals to 0, your bending moment is defined as 0 because it depends on the values of x. At x equals to L, right, or you can say put the magnitude of 10, your bending moment is defined as -50 minus 100, that gives you -150, right? So based on this condition, so the first thing we need to understand कि इसका magnitude कितना है.
तो एट x इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड 0 है और एट x इक्वल्स टू 10 पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो -150 है। ये तो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आपने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब ये कर्व कौन सा फॉलो होगा, तो यू नो दैट दिस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन कर्व ड्रॉ होगा दैट इज आल्सो योर क्वाड्रेटिक इन नेचर, which is also negative, which is also negative, और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। So this is the actual condition of your you can say the solution of this question. Is that clear to everyone, class? Class, is that clear to everyone? Yes, sir. R, हाँ सर. right? So this Yes, is not the right answer. Yes. Right? These are the two conditions and this is chalo. So I believe we have discussed cantilever beam with a point load as well as with UDL load. Now I'm going to coming up with the simply supported conditions, right? So I'm going to write a simply supported beam with point load at center, right? So let's see this condition first. I'm going, okay. Suppose simply supported beam है तो आपका extreme ends के reactions होना चाहिए, that is RA, RB, और point load P है, right? So we all know that its magnitude, reactions magnitude is P by 2, that is P by 2, right? Similarly, we occupy space below the load diagram, right? So in this, how we are going to solve this question? Class, remember one thing, in this condition we just draw first x1 section in between two loads, then we define x2 section the other two loads, right? Now देखो, here in this case this is defined as L by 2 because it is acting at the center. It is also defined L by 2, right? So let's first draw shear force, ठीक है? तो हमने बोला कि चलो shear force at x1 section पे कितना लग रहा है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। So just tell me one thing, x sections के बेसिस पे अगर आप देखो लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन फोर्स है क्या जिसकी मैग्नीट्यूड है RA, राइट? अब ये जो है आप देखोगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज डिफाइंड एज RA इज द फोर्स, राइट? इसके अलावा और भी कुछ और कोई वैल्यूज नहीं है, विच इज आल्सो डिफाइंड एज P by 2. नाउ always remember this equation is valid from 0 to x till L by 2, right? L by 2, अब ये L by 2 को आप ऐसा इमेजिन करो कि ये just before है, ठीक है? Now consider, अब हम shear force कैलकुलेट कर रहे हैं x2 sections, right? Now Sir. let me complete, I'll come with this one, don't worry, right? Just see this condition, I'll come with जो भी आपको डाउट आएगा ना वो हम उसको टैकल करते हैं। So at x2 conditions पे you can see that कि अब आपके पास वर्टिकल डायरेक्शंस पे कौन कौन सी फोर्सेस आ रहे हैं, लेट अस फर्स्ट रिजॉल्व इट। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे फोर्सेस आई आपकी RA जो कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, राइट? देन आपका आया माइनस ऑफ P मैग्नीट्यूड,
राइट, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट कर रही है। अब आप देखते जाओ एट दिस, सपोज करो कि एकदम आप इस कंडीशन पे जब आते हो, ये इसको शिफ्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज वैलिड फ्रॉम L/2 ऑफ x टिल L तक, राइट। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ योर shear force when we say कि x की वैल्यू जब हमने पुट रखा 0, राइट। तो जब x की वैल्यू 0 हमने रखा एट, यू कैन से एट x इक्वल्स टू 0, राइट। जब एट x इक्वल्स टू 0 रखा तो ये 0 आपकी 0 से L/2 है, तो यू कैन सी दैट यू हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। तो आपका जो shear force है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, P/2, यस। So let's, based on this conditions, let's draw the curve, right? अब यहाँ पे देखो at x की वैल्यू 0 पे ये एक पॉजिटिव मिल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, P/2, राइट। अब देखो जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज करते जाओ, ये इक्वेशन पूरी तरह से वैलिड कब तक है, जब L/2 तक है। जिसका मतलब x की वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है, but it does not, shear force does not depend on the values of x, यानी कि लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। जब ये लेंथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर हमने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ P/2, राइट, राइट। नाउ टेक द वैल्यूज, अब यहाँ पे जब से L/2 को रखा, हमने कहा कि चलो एट x इज इक्वल्स टू L/2, राइट। एट x इक्वल्स टू L/2 रखा, तो इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपका shear force का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। अब देखो कंसीडर दिस इक्वेशन, ये वैल्यूज कितनी है, P/2 माइनस P, ये इसका P/2 है, दैट इज डिफाइंड एज माइनस P/2, राइट। तो आप क्या देख रहे हो, अब आप यहाँ पे देखो कि एट x की वैल्यू L/2 पे आपका एक मैग्नीट्यूड जो है वो P/2 शो कर रहा है, और उसी सेम कंडीशंस पे दूसरा मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस P/2, राइट। अब इसकी वैल्यूज एट x इक्वल्स टू L पे आप देखोगे तो दिस इक्वेशन इज वैलिड, इसका मतलब shear force is defined as minus P/2, right? इसका मतलब this will be at this point up to minus P/2. So this is your shear force diagram, right? और अगर आप यहाँ पे P का मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये क्या है, P प्लस मैग्नीट्यूड किससे बात करो, P/2 प्लस P/2, ये क्या बोल रहा है, आपका टोटल लोड P एक्ट कर रहा, ठीक है। अब हमने क्या डिफाइन किया कि चलो हम एक इक्वेशन डिफाइन, अब ये अगर आप समझ रहे हो तो बेस्ड ऑन दिस हम एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस को डिफाइन कर लेते हैं, राइट। अब अगर हमने बेंडिंग मोमेंट x को डिफाइन करना चाहा तो क्या करेंगे, जस्ट टेल मी वन थिंग, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे P/2x, तो आपका जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दैट इज योर P/2 इंटू x, राइट। अब x के इसके लेफ्ट हैंड साइड इस रिएक्शंस आर के अलावा तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज वैलिड अप टू L/2, L/2, अब एट L/2 पे यही जैसे ही सेक्शन यहाँ पे आया, उस केस में भी P की को कंसीडर नहीं कर सकते ना, उसका P का कोई भी मोमेंट क्रिएट होगा नहीं। अब हमने क्या बोला कि चलो भाई कि मोमेंट x की वैल्यूज, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल्स टू वैल्यू, अब x2 सेक्शंस को लिया, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, राइट। तो जैसे ही आप x2 ले रहे हो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी x, राइट। हाँ, और ये जो डिस्टेंस अब आपको यहाँ से चाहिए, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज L/2 minus x minus L/2, राइट। तो कैन वी राइट दिस इक्वेशन, पहला क्या होगा, दैट इज योर P/2 x माइनस P into x minus L/2, right? Now this equation is valid from
L/2 till L, राइट। अब तुम दोनों ही इक्वेशंस को देख लो, राइट। अब पहला देखो, समझने की कोशिश करें। हमने बोला कि when x equals to 0, right? When I say x equals to 0, when I say x equals to 0, tell me one thing, क्या इन दोनों में से फर्स्ट एंड दिस टू इक्वेशन में से आप किस इक्वेशंस को यूज करोगे? ऑब्वियसली क्योंकि 0 से L/2 के केस है तो ये पहली इक्वेशन यूज करेंगे, हाँ सर। राइट। तो उस केस में आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ? आपका बेंडिंग मोमेंट हुआ 0, राइट। अब x इक्वल्स टू L को समझो एक्सट्रीम कंडीशंस, राइट। x इक्वल्स टू L जैसे ही रखा तो पुट दिस इक्वेशन, राइट। अब आपके पास ये इक्वेशन है क्योंकि इसकी वैलिडिटी कहां तक है? L/2 से L। अब जैसे ही आपने यहाँ पे रखा तो ये क्या हो जाएगा? PL/2 minus x minus L/2, L/2, so that is also defined as PL/2, this is equals to 0। अब यहाँ पे यश ऐसे देखो, बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है बेंड होने से रिस्पेक्ट में, राइट। तो आपके पास इन दो एक्सट्रीम्स पे व्हेन आई से कि x की वैल्यू 0, व्हेन आई से x की वैल्यू L, तो यहाँ पे कोई भी बेंडिंग कंडीशंस नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है? रिएक्शंस हैं। आपको दो सपोर्ट्स दिया है ना, तो क्या इस सपोर्ट पे कोई बेंड होगा? नो, नहीं सर, नहीं होगा, राइट। अब आप x की वैल्यूज को L/2 रखो। व्हेन आई से x इज इक्वल्स टू L/2, राइट। तो यस, जस्ट मेरे को एक बात बताओ, व्हेन आई से L/2, सो इट मींस व्हाट कि अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो ये वाली इक्वेशन लगनी चाहिए। अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो ये भी इक्वेशंस लगना चाहिए, करेक्ट? हाँ सर। ठीक है। अब देखो इन दोनों ही इक्वेशन से रिजल्ट क्या आता है? व्हेन यू पुट L/2 यू विल सी कि दैट इक्वेशन इज PL/4 आया क्या भाई? L की x की वैल्यू L/2 रखा तो L/2 L/4 हो गया और P हो गया, तो PL/4 हो गया फ्रॉम दिस इक्वेशन, यस। हाँ सर। अब इसमें रखो, देखो तो यहाँ पे L/2 जैसे ही रखा तो ये क्या हो जाएगा? PL/2 इंटू L/4, PL/4 ये बन जाएगा। हाँ सर, और सेम आएगा। x की वैल्यू L/2 रखा तो ये माइनस माइनस 0, तो इसका Zero. मतलब दिस आल्सो इक्वेशन ट्रू। तो ये दोनों ही इक्वेशन L/2 पे सही वैल्यूज और सेम वैल्यूज रिजल्ट दे रहे हैं क्या? हाँ सर। करेक्ट है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो आप इक्वालिटी इस कंडीशंस में यूज कर रहे हो वो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि एट L/2 की कंडीशंस को आप इमेजिन करो तो आपका एक कर्व बनेगा। पहला कर्व होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 से आप PL/4 तक जाओगे, राइट। और फिर ये डिक्रीज कर रहा है ना, हाँ सर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? PL/4। तो अब ये प्लस और ये माइनस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका जब सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड सेंटर पे ऐड कर रहा है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसके सेंटर पे आना चाहिए, राइट। तो उसका सेंटर L/2 है, तो यहाँ पे आपको वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिखाई पड़ रहा है जो L/2 पे शो कर रहा है, यस। जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? PL/4। जब भी बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम शो कर रहा होगा वहां पे शियर फोर्स अपना नेचर जो है वो चेंज करेगा। इसी कंडीशंस को आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। Is that clear to everyone? Anyone having any doubt? Just let me know. सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मतलब जो शेयर फोर्स डायग्राम में दिया है, हाँ, L/2 पे वो एक लाइन होल्ड कर रही है शेयर फोर्स की, पर शेयर फोर्स की तो एक वैल्यू होनी चाहिए ना सर, स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए ना। देखो शियर फोर्स की वैल्यू तो है ना। अब आप एक चीज सोचो, शियर फोर्स का मतलब क्या हुआ? शियर फोर्स का मतलब क्या हुआ कि आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही है वो आपको डिफाइन करना है, राइट।
तो बिफोर दिस आपके पास कितनी फोर्सेस थी? सिर्फ रिएक्शंस थी जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पे है, और ये x की वैल्यू पे डिपेंड, मतलब लेंथ ऑफ द बीम पे डिपेंड नहीं कर रही। तो आपने क्या किया, अप टू दिस पॉइंट तक ये वैल्यूज को यहाँ तक लेके गए, राइट। लेकिन जैसे ही ये P इंट्रोड्यूस हुआ, तो P इंट्रोड्यूस किस पॉइंट पे होगा? P इंट्रोड्यूस होगा आपका L बाय 2 पे। राइट। लेकिन जैसे ही ये P L/2 पे इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे ही ये अपना जो है रिएक्शन जो RA की जो वैल्यूज है उस पर इम्पैक्ट आएगा, यस। तो अभी इसमें जो P/2 था, P इसमें से कैंसिल आउट हो गया, राइट। अभी कितना बचा? -P/2, ठीक है। तो -P/2 इज ऑल्सो एप्लीकेबल एट L/2 पे ना। सर मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो लाइन है ना वो डिसकंटिन्यूअस होती तो मतलब कुछ फिजिकल मीनिंग बनता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। एक ही पॉइंट पे दो स्ट्रेस वैल्यू नहीं हो सकती ना सर, एक ही तो वैल्यू रहेगी ना, एक तो प्लस P/2 या माइनस पॉइंट पे P/2। एक स्ट्रेस वैल्यूज हमने डिफाइन किया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? P, यस। नंबर एक ही पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है वो कितना डिफाइन करोगे? जो उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन है, यानी कि P, राइट। जो हाफ ऑफ द वैल्यूज जो है उसकी, वो पॉजिटिव वैल्यूज को शो कर रही है, हाफ ऑफ द वैल्यूज जो है वो नेगेटिव शो कर रही है, ठीक है। तभी उस पॉइंट पे टोटल वैल्यूज जो है वो P ही एक्ट कर रही है। हाँ समझ। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। Other than Yash, everyone is clear? Yes, sir. पीयूष? Yes, sir. सर निरंजन बताइए। सर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन तो वो पॉइंट होता है ना जहाँ पे BMD का लाइन 0 से कट करता है। टेंशन मत लीजिए, अभी हम सब पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ओके। ठीक है सर। अभी 1 बाय 1 चलने दो, अभी तो हमने सिर्फ एक सिंपल सा केस लिया ना। ओके सर। चलो अब इट्स यू टू, अब आप लोग जो है इसका सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन विद इसेंट्रिक लोडिंग की कंडीशंस को हम डिफाइन करते हैं, राइट। ये अभी इसके पहले जो कंडीशंस थी वो क्या थी? सिंपली सपोर्टेड विद बीम विद पॉइंट लोड एट सेंटर, राइट। नाउ सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड जो है एट सम डिस्टेंस बट नॉट एट सेंटर। तो मैंने ये बोला कि दिस इज योर P, this is the value of A and this one is the value of B, right? Now I am going to reserve this values, ठीक है। ठीक है, can we solve this question? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने रिएक्शंस को कैलकुलेट किया, दैट इज RA एंड RB। आदित्य, यू देयर? आदित्य नहीं है क्लास में आज। Okay, can anyone tell me what is the reaction at A and B? Patak say. PB. Just let me know. That can be P by L into B. Yes. Right. And here it is to be P by L into A. Correct. So this is the reaction at A and this one is the reaction at B point. Right. So same conditions we have defined x1 here and x2. So we are considering two sections, x1 and x2. So we can write shear force at x1 conditions, right? So when I say shear force at x1, it means what?
आपको यहाँ पे कौन सी फोर्सेस नजर आ रही है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन ए पे नजर आ रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? P by L into B. Yes or no? Now this equation is valid up to A point, right? Now take shear force at x is equals to 2 condition x2 section पे, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट इज P by L into B minus P, right? And this equation is valid. This equation is valid till you can say L, right? L is the length of the beam. Now based on this condition, just tell me कि आपका अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, अगर मैं if I'm going to draw this point load डिफाइन किया, तो आपका फर्स्ट कंडीशन जो हुआ 0 to A तक आपका मैग्नीट्यूड क्या है शेयर फोर्स का? P by L into B which does not depend on the value of X. तो इसका मतलब here this case आपको वैल्यू डिफाइन होगा, right? Now just tell me one thing कि if I say कि आपका X की आप यहाँ पे जो डेफिनेशन आ रही है that is P by L into B minus P. So can we write this expression that is P common लिया तो हो जाएगा B by L minus of 1, right? Class, just tell me one thing, right? Is this correct? तो आपका यहाँ पे जो कंडीशंस बना, इसका ये मैग्नीट्यूड कितना है? P L by B, राइट? तो इस पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? ए की वैल्यू जैसे ही रखा तो P L इंटू ऑफ बी कंडीशंस को डिफाइन किया. अब इस इक्वेशन में यू कैन से कि अब आपकी कंडीशन है x की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे L रखा, तो मैग्नीट्यूड आएगा कितना? मैग्नीट्यूड आएगा P B माइनस L बाई L. अब L माइनस बी है कितना? L माइनस बी माइनस A होगा ना, सो दैट इज डिफाइंड एज P A माइनस बाई L. तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना है आपका? माइनस पी ए बाई एल. ये मैग्नीट्यूड है पी ए बाई एल. अब देखो इसको अगर ऐड करोगे दिस प्लस दिस, आपको क्या मिलेगा? पी मिलेगा. पी एल बाई बी प्लस पी ए बाई एल, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस बी बाई एल. तो ए प्लस बी वही आपकी वैल्यूज होगी. सो दिस इज योर shear force diagram, right? Let's draw your bending moment equations, right? So based on this, first हमने bending moment at x conditions को define किया. So what is the magnitude? We can write that is RA, instead of RA I'm going to write P by L B into x, right? So now again this equation is valid from 0 to x till A. Now bending moment at x is further defined as P by L B into x minus, right? And at this point we can define that this is x minus A हो जाएगा ना. This value is x minus of A. So that can be written as P x minus of A values, right? And this equation is defined till you can say L, right? Now I'm going to draw this diagram. At x equals to 0 पे your bending moment mx can be written as 0. At x equals to L पे your bending moment x. Put this values x L here. तो L minus A की values क्या हो जाएगी? L minus A is B, right? And here put values of L. तो ये L cancel out और ये हो जाएगा PB, right? तो values of PB is equals to 0. तो यानी कि again bending moment is 0. तो आपको एक्सट्रीम एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट आपको 0 मिल रहा है. पुट द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल्स टू a.
ठीक है, तो ए की वैल्यूज क्या हो जाएगा, पी बी ए बाई एल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा पी बी ए बाई एल, एंड दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन टू दिस कंडीशंस। Put x is equals to a, here in this case bending moment a की वैल्यूज क्या हो जाएगा, p b a by, class tell me, is that clear to everyone? Class, just tell me no, is that clear to everyone? Yes, sir. Great. Chalo, I'm taking one more example. It's a case you can say as a pure bending conditions. It is again a simply supported beam. Class, I want everyone to participate and solve this question. Draw a diagram. That is RA. This one is your RB. This is the case, right? P. This is A distance. This is A distance, and this one is O. I want everyone to draw shear force and bending moment diagram, right? And जिससे मैं बोलूँगा वही मेरे को आंसर करेगा कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा. Just let me know the diagram, ठीक है? Accordingly I'll draw. जैसा आप बोलते जाओगे वैसा मैं ड्रॉ करता जाऊँगा. There. हाँ सर. Please. This is the question. This is a case of pure bending, or you can say a simply supported beam. Simply supported beam with 2-point load, right? Yes. Now please tell me how you are going to solve this question. फटाक से ड्रॉ करो डायग्राम. मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हो तुम लोग. फटाक से ड्रॉ करके मेरे को तुरंत बताओ. Then I'll ask someone. A से up to A से, that value start from A and end with. अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये एंड पॉइंट यहाँ तक है, यानी कि L माइनस A तक, राइट? ये डिस्टेंस है दिस पॉइंट से, दिस पॉइंट इज L माइनस A, एंड सेक्शन X3. X3 क्या हो जाएगा, L माइनस A से L. ठीक है, so we have 3 different sections. So based on 3 different sections we have to define 3 equation. तो वो 3 equation कौन सी बन रही है, let's see. First one, first that we are going to understand your shear force diagram. Shear force at x1 conditions. So x1 shear force को इधर आप देख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू p. अच्छा, I believe this is clear to everyone कि RA की वैल्यूज और RB की वैल्यूज जो है वो P ही है, टोटल जो रिएक्शन. ठीक है, तो ये वैल्यूज कितनी हुई, P. इसका मतलब दिस इक्वेशन वैलिड x1 के लिए है, तो ये हमने 0x till A तक डाल दिया. अब देखो shear force at x2 कंडीशंस पे समझने की कोशिश करो. x2 पे आपको सिर्फ 2 ही फोर्सेस नजर आ रही है, एक कैपिटल VP और दूसरी माइनस P. ठीक है, दिस इक्वेशन इज वैलिड टिल A x L माइनस A, राइट? इसका मतलब दिस इज 0 ना, दिस मैग्नीट्यूड इज 0. ठीक है, अब हमने बोला कि शियर फोर्स x3 सेक्शन पे समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा. x3 कंडीशंस पे शियर फोर्स. अब यहाँ पे आप क्या क्या फोर्सेस कंसीडर करोगे,
बाई कैपिटल P माइनस P और माइनस। अब इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इन दिस कंडीशन आपका टोटल मैग्नीट्यूड है माइनस P, जिसकी लिमिट है L माइनस A से L। क्लियर है? अब बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया आपको ड्रॉ करना है, तो आपने क्या करोगे भाई, x1 तक लेना है तो लिमिट है 0 to a, L माइनस A और L, ये तीन लिमिट बनी। जब एक shear फोर्स की वैल्यू कोई भी x पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये मैग्नीट्यूड फिक्स है ना, तो भाई इस वैल्यूज पे P है, ये पॉजिटिव आया, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे आप वैल्यूज को रख दो। अब आपको बोल रहा हूँ कि चलो भाई इस कंडीशन पे आपकी x की वैल्यूज जो है a पे आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो a की वैल्यू 0 है ना, इसका मतलब यहीं पे आके 0 हो गए इस पॉइंट पे। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज डिफाइंड एज 0। फिर फर्दर जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो तो L माइनस A पे आपकी वैल्यूज माइनस P है ना, जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे आया माइनस। That will close. So this is this one is your positive end, this one is your negative one, and it is defined as this condition, right? Okay. Now based on this, how I am going to draw the bending moment? तो based on three limits, ये हम conditions को define कर लेते हैं x1 के लिए. Just tell me one thing, Bhavesh, see these conditions. When you talking about this one, तो अब आपका x1 के आगे आपको एक वैल्यूज है जिसको हमने बोला RA into x, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x है, राइट? तो ये लिमिट आपकी डिफाइन हो रही है 0 to x till a। तो आप ये देखो कि जब आपका वैल्यूज x की वैल्यूज a रखोगे तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, P into a, दैट इज RA into a स्मॉल a, और RA की वैल्यूज है P, तो वी कैन राइट दैट इज P into a। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो बेंडिंग मोमेंट 0 है, जब x की वैल्यूज a है तो बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P into a, right? Now see this condition. When I'm going to write bending moment of x2 sections, तो x2 sections के लिए आपकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, P into x, right? हमने यहाँ पे रखा, ये वैल्यूज हुआ x की डिस्टेंस हुई, ये हुआ P into x माइनस। अब हियर इन दिस केस देखो ये डिस्टेंस है कितनी, x माइनस a ही होगी ना यार, हमने क्या लिखा, P x माइनस a, क्लियर? अब दिस इक्वेशन इज वैलिड a टिल L माइनस a तक। अब इस इक्वेशन को थोड़ा अगर आप एनालाइज करो तो क्या हम ये लिख सकते हैं, P माइनस एक्स माइनस P माइनस एक्स प्लस P इंटू ए। तो आप देखो ये इक्वेशन ये वैल्यूज कैंसिल आउट, इसका मतलब अब आपके पास ये जो इक्वेशन सेकेंड कंडीशन बन रही है ये P प्लस ए की वैल्यूज को पूरा फुलफिल कर रही है भाई, जहां तक ये वैल्यूज कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड, इसमें कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा है, राइट? तो अब आप थर्ड सेक्शंस को आप एनालाइज करो x3 के लिए, तो आपका वैल्यूज कितना हुआ। अब आप यहां से देख रहे हो तो सबसे पहला ये x डिस्टेंस बना, ये क्या बना, P इंटू एक्स, फिर उसके बाद ये वाला मैग्नीट्यूड बना। अब ये वाला मैग्नीट्यूड है कितना, x माइनस ए, दैट इज माइनस P x माइनस ए, राइट? फिर आपका ये डिस्टेंस बना, ये डिस्टेंस है कितना, माइनस P। अब ये कितना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस L माइनस ए, तो आप लिख सकते हो x माइनस L माइनस ए। अब आपकी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, देखो ये वाली और ये इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगी, बनेगी P a माइनस P x, ये वैल्यूज को जो मल्टीप्लाई किया इसको ओपन किया तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस P L, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता था और ये हो जाएगा माइनस, दैट इज माइनस P a। ये वैल्यू 0 हो गई, राइट? तो आपको अब देखो जब आप x की वैल्यूज L रखोगे, यहाँ तक तो आपको वैल्यूज पता है P a है,
जैसे ही तो ये पी एल हो गया तो प्लस पी एल और पी माइनस पी एल कैंसिल आउट, इसका मतलब दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू 0 एट दिस पॉइंट. So the correct, you can say the correct bending moment is this one, and this one. Is this diagram. Participate. जितना समझोगे, जितना आइडिया रहेगा, उतना अच्छे से आप ड्रॉ करोगे. So the next one is your double overhanging beam, right? So let's draw this. दो रोलर सपोर्ट्स आपको यहाँ पे मैंने दिया है. This is a point load P at the both ends, you can say, right? So this one is your A point, this one is your B point, this one is C, and this one is D, right? So let's occupy first the space behind the below the this one, right? So the first thing that we need to understand to find out the reactions, yes or no? So here in this case, we define the reactions, that is RA, the values of P, RB, again it is defined as P, right? So I'm not going to solve how the reactions has been defined, right? You already know कि हमको reactions कैसे find out करना, ठीक है? अब हमने फर्स्ट जो है यहाँ पे इक्वेशंस को बिल्ड करने की कोशिश की. तो फर्स्ट इक्वेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चलो पहले तो हमने यहाँ पे देखो वन सेक्शन को डिफाइन किया x1, this is your x2, right, and this one is your x3. Based on these three conditions हमें तीन इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं. पहला तीन सेक्शंस को, इसकी लिमिट क्या होगी? 0 to x till a. अब ये a क्या है? A is the distance, this is the distance, you can say, right, from this point to this point a distance को defined है. Class, is that clear to everyone? ठीक है. अब इधर देखो, अगर 0 x a की सेक्शंस को अगर आप देख रहे हो तो आपने पहले shear force को कैलकुलेट किया. तो x सेक्शन पे shear force का मैग्नीट्यूड है कितना? Can anyone tell me? Yes, its magnitude is minus p into pa, sorry, minus p, right? Similarly, अगर मैं यहीं पे अगर बेंडिंग मोमेंट भी लिखना चाहूँ तो कोई मुझे बता सकता है क्या x1 सेक्शन पे आपका बेंडिंग मोमेंट कितना है? कोई बताएगा क्या? Anyone tell me what is the magnitude of moment at x1 section? minus p into x. Minus p into x, right? Okay. Now see this condition. अब हमने क्या लिखा? अब नया एक लिमिट डिफाइन किया जिसको x2 सेक्शंस की बात कर रहे हैं, that is defined as x, and that is valued from L plus E. Right? अब L क्या हो जाएगा? L is the distance between two conditions. ये L हो गया इनके बीच का, ये L plus A की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं. L is the length between two supports. Tell me one thing, just tell me, अगर हम यहाँ पे shear force को कैलकुलेट करना चाहें, shear force x की कंडीशंस पे, तो क्या हम ये लिख सकते हैं आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है? माइनस p, राइट? और इस सेक्शन पे आपका मैग्नीट्यूड अपवर्ड डायरेक्शन पे आ गया रिएक्शंस की वजह से, दैट इज योर
plus P, it means this is equals to 0. So shear force will remain 0 from B point till C point. तो चलो अब हम साइमल्टेनियसली ड्रॉ भी करते हुए जाते हैं. राइट नाउ सी, मैंने क्या बोला कि आपका shear फोर्स 0 से A के बीच का मैग्नीट्यूड कितना -p. इसका मतलब यहाँ से अगर आपने 3 कंडीशंस को डिफाइन कर लिया, 3 पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन किया, तो दिस इज द वैल्यूज ऑफ -p अप टू दिस पॉइंट, राइट. और B to C shear फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 0. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे वैल्यूज कितना हो जाएगा 0, राइट. अब थर्ड केस को के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं. ये थर्ड केस क्या है आपका, भाई लिमिट्स कितनी है, L प्लस A x टिल L प्लस 2A हो जाएगा ना ये, क्योंकि A और ऐड हो जाएगा, तो ये आपका L प्लस 2A मैग्नीट्यूड. हियर इन दिस केस चलो अब shear फोर्स x की कंडीशंस को देखते हैं. अब x3 सेक्शन पे आप बात कर रहे हो, x3, दिस इज योर x3. तो x3 में -p आपका एक फोर्स मिला, राइट. फिर आपको क्या मिला +p जो कि रिएक्शन एट B पे लग रहा है. फिर आपको क्या मिल रहा है, अगेन रिएक्शन एट C पे मिल रहा है क्या, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है +p. मतलब ये कैंसिल आउट, ये इक्वल्स टू आ जाएगा p. तो इसका मतलब L प्लस A से L प्लस 2A तक का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, p की वैल्यूज को शो कर रहा है. क्लास इज दैट क्लियर टू एवरीवन. तो क्या आपका ये shear फोर्स डायग्राम बन गया क्या, SFD, राइट. अब देखो BMD भी इसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो. ऐसे यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट का मोमेंट आपको मिल चुका है -p इंटू x. x की वैल्यू 0 रखा तो 0 आया, a रखा तो pa आया. तो इसका मतलब इसको अगर फर्दर कंडीशंस को डिफाइन करें तो ये माइनस वैल्यूज है, ये वैल्यूज यहाँ पे टर्मिनेट हुई, राइट. अब यहाँ पे देखो मोमेंट x को कैलकुलेट कर रहे हो तो x2 सेक्शन पे आपकी वैल्यूज कितनी बन के आएगी, दैट इज योर -px प्लस RA x minus A, which is also defined as minus of PA. क्योंकि RA की वैल्यूज P है तो RX कैंसिल आउट, ये वैल्यूज कितनी बन जाएगी -P. तो इसका मतलब ये फर्दर इसी तरह से इक्वेशन बनी, राइट. और हियर इन दिस केस अभी थर्ड केस को डिफाइन किया तो ये वैल्यूज क्या बनेगी, मोमेंट x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये होगा -px प्लस p x माइनस a माइनस p x माइनस l माइनस ऑफ a कंडीशंस को, राइट. तो अब इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, mx इज इक्वल्स टू px माइनस pl माइनस 2p इंटू x, राइट. तो इस इक्वेशन पे जब आप देखा, जब आप x की वैल्यूज को l रखा, तो यहाँ पे x की वैल्यूज को जब l रखा तो यू विल फाइंड दिस कंडीशन. तो ये आपको इक्वेशन मिल गई कि BC पार्ट ऑफ द बीम इन प्योर बेंडिंग. ऑलवेज रिमेंबर BC पार्ट जो है वो प्योर बेंडिंग के केस को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ओवरहैंग, डबल ओवरहैंग and beam conditions. Is that clear to everyone? चलो just be at x equals to 0, this is x equals to 0, this is x is equals to L. x equals to 0 पे कितना रहेगा, +10.
ओके ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव 10 का मतलब है कि सबसे पहले आपने रिएक्शन आर ए की वैल्यूज 10 डिफाइन किया होगा ना, हाँ हाँ और आर बी भी 10 होगा, हाँ। ठीक है। और एट एक्स इक्वल टू अपना मतलब 10 -10 होगा एसएफडी में, एक्स 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 इक्वल टू इक्वल्स एल टू में। एल पे -10 रहेगा, ओके। और वो स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन करेंगे। मतलब ये दो पॉइंट और ये दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन ज्वाइन से करेंगे, ज्वाइन कर दें, हाँ हाँ ऐसे जाएगा, हाँ। ठीक है। नाउ प्रणाली लेट मी नो कि इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा। सर एक सिंगल ट्रायंगल आएगा with the maximum value at the center. सिंगल ट्राइंगल आएगा विद द मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर, Center. ऐसे। हाँ. मुझे प्रणाली तुम इसका सेंटर का मैक्सिमम वैल्यू बता सकती हो कितना होगा? 25 kilonewton meter. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सबको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये कैसे बना है, ठीक है। प्रणाली जस्ट सी दिस कंडीशन। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे एक सेक्शन कट किया होगा, राइट। बेस्ड ऑन दिस आपने शेयर फोर्स, लेट मी कंप्लीट, आपको इसका सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट एक्स कंडीशन पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या देखा, आपको रिएक्शन मिला जिसका मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है। और इस पे टोटल लोड जो एक्ट कर रहा है, टोटल लोड का मैग्नीट्यूड हुआ 2 × x, ठीक है। अब ये सिंपल है, तो ये वैल्यूज x to l तक इसकी लिमिट है, तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखा तो आपको शेयर फोर्स मिला 10, जब आप x की वैल्यूज को l रखा तो आपको शेयर फोर्स मिला -10, राइट। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि शेयर फोर्स को अगर आप देखोगे तो इट डिफाइंस अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई, आपने इसको बना दिया। Now let's understand bending moment x, right? When we talking about the bending moment, आपकी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये आपका आया 10x बराबर है, जो कि इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है अपवर्ड, माइनस अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स आपको लग रहा है, जिसका टोटल फोर्स तो 2x है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा x/2। यहाँ से x की वैल्यू तो है ही टोटल x, बट इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो x/2। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनी, ये बनी है 10x - x², ठीक है। अब इसको समझने की बात है कि x की वैल्यू 0 पे बेंडिंग मोमेंट आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 0, x की वैल्यू l है, यानी l का मतलब है 10, तो आपका बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ, 100 - 100, तो दैट इज अगेन 0। अब x की वैल्यूज अगर 5 है, सेंटर पे अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 50 - 25, सो दैट इज डिफाइंड एज ए 25। तो प्रणाली आपका सवाल का आंसर तो बराबर सही था, बट ये बेंडिंग मोमेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ना होके एक पैराबोला। पैराबोलिक। हाँ. ये अपनी गलती रियलाइज हुई, Yes sir. क्लियर है। तो देखो ये जो कर्व बन रहा है, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये हम या तुम अपने मन से नहीं बना सकते, ये उसी कंडीशन पे बनेगा कि ये उनके इक्वेशन किस तरह से बन रही है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही थी तो हम स्ट्रेट लाइन बना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है तो हम क्वाड्रेटिक वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. हाँ, Yes sir. चलो नेक्स्ट जो कंडीशंस हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो अच्छा मतलब इस कंडीशंस को बोलते हैं, जो शायद लास्ट क्वेश्चन भी हमने आपको दिया था,
that is defined as your gradually varying load. Gradually varying load, right? अब ये gradually varying load की conditions के basis पे चलो हम क्या define करते हैं देखो. Gradually varying load आपका कुछ इस टाइप से है. Yes, एक simply supported beam है जिसको आपको बोला RA है, this is your RB है, जिसका magnitude है W, right? Now let me know what is the first challenge that we need to identify in this question. The first challenge is we need to first find out the reactions RA and RB. तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि इसका reactions RA RB कितना होगा? Can anyone tell me what is the reaction at RA and RB at this particular point? No one? RA सर होगा WL/3, RA होगा WL/3, ओके, RB होगा 2WL/3. बिल्कुल गलत. अब देखो ये क्या RBW होगा ना. दिस इज योर L, राइट? RBW अच्छा अच्छा अच्छा, लेट मी सी फर्स्ट दिस कंडीशन. अब हम इसको एक सिंपल, अगर मैं एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या, कैसे कन्वर्ट कर पाऊँ? W into L. हाँ, WL/2. WL/2, ठीक है. अब यहाँ पे दो सोचो, दिस इज योर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. तो सबसे पहला जो है, जो टोटल लोड होगा, मैंने ये आपको बताया था क्या कि आपका जो टोटल लोड होगा इस कंडीशन में वो आपका टोटल एरिया के बराबर होगा. यस और नो? तो यहाँ पे एरिया है कितना? एरिया इज डिफाइंड एज हाफ W into L, right? That is the first thing that we need to understand. The second thing is point of application, right? अब ये point of application मतलब किस point पे अप्लाई करेगा, तो ये आपके सेंटर ऑफ द CG वैल्यूज पे डिफाइन करेगा, ठीक है? तो ऑलवेज रिमेंबर ये CG आपका है कितना. अगर इस टाइप की कंडीशन है तो CG will always lie from this point to L/3 डिस्टेंस पे, और यहाँ से जो है वो L/3, मतलब from this point it is defined as 2L/3. Is that clear to everyone? Yes. तो आप देखो, अब बड़ा सिंपल हो जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे दिया है WL/2, राइट? अब आपको ये पता है, सबसे पहला आपने क्या लिखा? WL/2 इज द मैग्नीट्यूड, राइट? अपॉन L, ये टोटल लेंथ हो गया, इनटू ये डिस्टेंस आप लोगे ना, यानी कि L/3. WL/6. सिंपल सा है ना, जैसे हम सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड को कंसीडर करते हैं रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए, वैसे यहाँ पे भी ले लिया. अब RB की वैल्यूज कितनी हो गई? आपकी हो गई WL/2 इंटू L अपॉन L इंटू ये डिस्टेंस 2L/3, सो दैट कैन बी रिटन एज 2L/3. तो ये देखो 2L यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे L कैंसिल आउट हो गया, तो RA की वैल्यूज हो गई कितनी? WL/6, और RB की वैल्यूज कितनी हो गई? WL/3. सर वहाँ पे 2L है ना, वहाँ पे L आना चाहिए ना. कहाँ पे? सॉरी सर, वो नीचे मुझे लगा सर आपने 2L लिखा है इसलिए. यहाँ पे
हाँ सर, वो मुझे लगा ठीक। कि नहीं अभी ठीक L लिखा ही है ना, जो आएगा। लिखा है ठीक लिखा है ना, पहले ये बता दो। हाँ बराबर, हाँ अब मेरे को बराबर। एक बात बताओ, अगर आपके पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की कंडीशंस है तो क्या आप लोग सबसे पहला जो रिएक्शंस फाइंड आउट करना है वो कर सकते हो? Yes, sir. इट इज इजी टू कैलकुलेट द रिएक्शन देयर। यस सर। यस सर। नाउ क्लियर हुआ तुम्हें कैसे इसको कैलकुलेट करना है? हाँ सर। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक। यस यस। ओके, वेरी नाइस। अब सेकंड थिंग, इसको समझने की कोशिश करो। नाउ लेट्स ऑक्यूपाई द स्पेस इन बिटवीन, इन बिलो दिस वन। ठीक है, now who's laughing man, let's mute all. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें shear force को कैलकुलेट करना है, तो हम उसकी कंडीशंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर लूँ। ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। ठीक है, और ये वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज कितनी थी? WL/6 और यहाँ पे थी WL/3. So based on this we can write WL/6 and that is defined as WL/3. ठीक है, let's first draw. अब हम यहाँ पे एक sections को cut करते हैं. This is your x1 and this one is your x1 sections, right? So x1 is taking distance from 0 to x. So based on this, let's understand the shear force first. Shear force at x की distance. ठीक है, अब at x equals to z, अच्छा ये है कितना? सबसे पहले shear force को जानना है, इसका मतलब टोटल लोड कितना होगा at x पे। तो टोटल लोड इज ऑल्सो अगेन डिफाइंड एज ए टोटल एरिया। तो ये टोटल एरिया है कितना? अब यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है पहला, तभी तो आप हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा मेथड है कि एक आपको सिमिलर ट्रायंगल कंडीशंस आप लगाओ, राइट? तो उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। तो हमने बोला कि चलो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, this point is your D, this point is your E, right? And you need to find out the value of ED values. So based on BC, तो आपके पास दो चीज की डिस्टेंस पता है, एक आपको लेंथ पता है, ठीक है, और दूसरा हाइट पता है। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि हमने बोला चलो आपको कैलकुलेट करना है ED, तो ED क्या है? हाइट। तो ED अपॉन BC, राइट, which is also equals to AC, नहीं AC नहीं, AD अपॉन AC। अब BC का डिस्टेंस क्या है? BC है कितना? W। AC कितना है? L। तो ये आपका हो गया W, तो ये हो गया X, राइट? तो आपको ED की डिस्टेंस पता चल गई। तो ED है कितना? ED आपको डिफाइन करेगा W/L इंटू X। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आपका कभी भी याद रहे, तो हमेशा अगर कैलकुलेट करना तो याद रखना कि वे हाइट बाय लेंथ इनटू द डिस्टेंस ऑफ दैट वन। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ से इसको, ये पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, आप सबको पता चल गया कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट? तो अब देखो shear फोर्स x की डिस्टेंस पे आपको पता चल गया। तो अब ये है कितना? हाफ माइनस हाफ इंटू W बाय L इंटू X, दैट इज योर टोटल लोड, राइट? नाउ सी दिस कंडीशन, ये आपको हो गया टोटल लोड इसमें एक्ट कर रहा है। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे अगर वैल्यूज को समझने की कोशिश करो, क्लास ये इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आपका ये जो वैल्यूज हो जाएगा माइनस WX/2L होगा ना? सर RA भी आएगा ना? अरे हाँ, अरे आएगा ना, बराबर है। तो ये वैल्यूज हो गई प्लस RA। और सर वो एक स्क्वायर होएगा ना?
क्योंकि हम लोग ने खाली हाइट नहीं, अरे हाँ, इंटू W एक्स और होगा ना। W यस x by यस 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 यस, हाँ एक्स तो आपका ये जो होगा ना, ये टोटल उस एक्स डिस्टेंस पे कितना है, ये तो लोड हुआ। हाँ x स्क्वायर होगा। हाँ, तो लेट मी करेक्ट इट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, इसी में निकल गया। अब हम इसको लिखेंगे, अब देखो हम इसको लिखेंगे क्या, WL/6 माइनस हाफ ऑफ टोटल लोड। टोटल लोड जो डिफाइन करेगा वो कितना है, दैट इज योर ये पॉइंट का हमने कैलकुलेट किया, दैट इज योर W/L इंटू एक्स इंटू एक्स। सो दिस इज योर टोटल लोड, करेक्ट। अब दिस इक्वेशन इज वैलिड फ्रॉम 0x till L, right? अब see this condition, this is your basically WL/6 minus WX square by 2L, right? मुझे कोई बता सकता है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है? अगर आप इस चीजों को समझने की कोशिश करो, इफ आई एम गोइंग टू राइट y is your shear force, this is equals to A minus BX square. Yes or no? Can we write this equation? Yes. So this is your what? Quadratic equation. Based on this, चलो आपको एक चीज क्लियर हो गया कि अगर हमने x की वैल्यूज को 0 रखा तो आपको shear force कितना मिलेगा, that is your WL/6। अगर हमने x की वैल्यूज को L रखा तो shear force कितना मिलेगा आपको, WL/6 माइनस WL स्क्वायर बाई 2L, यानी कि ये कैंसिल आउट और ये वैल्यूज कितनी हो गई, माइनस WL बाय माइनस WL बाय 3। तो आपको दो एंड पॉइंट्स की वैल्यूज मिल गई क्या? यहाँ पे जो आपको वैल्यूज है दैट इज डिफाइंड एज योर WL/6 और यहाँ पे जो वैल्यूज है विच इज डिफाइंड एज माइनस WL/3, राइट। नेचर ऑफ कर्व आपको ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक वैल्यूज को शो करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आगे एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ क्लास सी दिस कंडीशन, if I am going to write your moment equation, that is your mx, तो मोमेंट इक्वेशन को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको WL इंटू एक्स, क्योंकि x की डिस्टेंस पे है, yes और no? तो ये लिख सकते हैं ना, दैट इज योर W/L/6 इंटू एक्स माइनस, अच्छा एरिया, टोटल एरिया कितना था आपका, हाफ WX/L इंटू एक्स, दिस इज योर टोटल एरिया, राइट। और ये कितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो लग रहा है दैट इज योर 2x/3 इज योर लोड ऑफ एप्लीकेशन ना, सो वी कैन राइट इट इज डिफाइंड एज योर हियर इन दिस केस, तो यहाँ पे जो है ये होगा 2x/3, तो आपका यहाँ पे लग रहा है ना, तो दैट इज योर x/3, तो ये वैल्यूज हो जाएगा आपका इंटू x इंटू x/3, राइट। नाउ सी दिस कंडीशन, तो क्या आपकी जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है वो आएगी क्या, WL/6x माइनस WX/6L, राइट। नाउ अब इस कंडीशंस को देखो, आपके पास बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बन गई, शियर फोर्स की इक्वेशन बन गई। आपको ये अभी नहीं आइडिया है कि शियर फोर्स की वैल्यू 0 कब हो रही, क्योंकि ये कर्व यहाँ से यहाँ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपको डिफाइन करेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो हमने ये डिफाइन किया कि चलो आपके पास जो इक्वेशन थी दैट इज योर देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a माइनस bx स्क्वायर, राइट।
अब यहाँ पे x की वैल्यूज आपने 0 किया था, व्हेन यू पुट x की वैल्यू 0, तो आपको जो है y की जो वैल्यू थी वो मिली थी कितनी, WL/6, and when x is equals to L, you will get y is equals to minus WL/3, right? So if we want to find out the value where the value of x where shear force equal 0, so when we put this values, y की values यहाँ पे put कर सकते 0, so when we put the value of y 0, तो आपको क्या मिलेगा, a minus bx square is equals to 0. अब see this condition, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, WL/6, और b की वैल्यूज कितनी है, I am going to write simply the same equation, right, जो कि आपको क्लियर रहेगा कि shear force, मैंने क्या बोला, shear force x कितना था आपका, WL/6 माइनस कितना था ये, माइनस WX²/2L, right, WX²/2L. If you put this value 0, right, you will get the values of x where the shear force is equal to 0. So based on this conditions, we can write WL/6 is equals to WX²/2L. So this 3, this cancel out, then x is equals to L square, x square can be x²/3, where x is equals to L/√3. Okay, it means what? It means what? At x is equals to L/√3. This is the point जहां पे आपका कर्व जो है shear force क्या वैल्यू शो करेगा, 0, and this is your quadratic in nature, right? So this is the shear force diagram. This is your positive end and this one is your negative. And against this values आप यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करो तो आपका bending moment जहाँ पे shear force at this particular point पे जहाँ पे shear force 0 होगा वहाँ पे bending moment maximum होगा, right? So this is your bending moment equation. अब यहाँ पे देखो, this is the equation. Put x equals to 0, तो moment bending moment x की वैल्यू क्या है, 0, right? Put x is equals to L, x is equals to L रखा तो bending moment की वैल्यू कितनी है, ये आई WL यानी कि WL²/6, right? यहाँ पे क्या होगा, WL3/6L, तो ये L और L यानी कि ये वैल्यू भी 0 हो गई, right? अब put x is equals to L/√3, तो ये वो वैल्यूज है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम देगा, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, mx की वैल्यू कितनी हो गई, WL/6 into L/√3 minus WL3/√3 into 6L, right? ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, and you will get the maximum, you can say the bending moment is maximum, और जब इस इक्वेशन को इक्वेट किया तो हो जाएगा WL²/9√3, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, और आपका ये क्यूबिक कर्व है, तो दिस विल बी लाइक so this is the diagram of your bending moment in gradually varying load conditions. Yes, कोई मुझसे डाउट कोई पूछ रहा था, बताओ, now tell me, is there anyone having any doubt? I am taking one more example of simply supported beam. अभी तक हमने कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट मोमेंट कैलकुलेट किया, राइट क्लास?
Now I'm going to take simply supported beam with point moment, right? Class, अरे हाँ है ना, आगे पढ़ा जाए कि बस हो गया? हाँ सर. बस हो गया? चलो एक पॉइंट मोमेंट है m जो कि एक्ट कर रहा है. The first thing we need to find out is the reaction. अच्छा एक बात बताओ, मोमेंट के होने की वजह से क्लास हाँ सर. यार तुम हाँ बोलते रहा करो यार, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता है कौन सुन रहा है कौन नहीं. हाँ. At least somebody say yes. So this is A and B point, right? Just let me know first thing कि क्या मोमेंट होने की वजह से रिएक्शंस आर ए एंड आर बी में कुछ वैल्यूज आएगी क्या? नहीं. नहीं. क्लियर है? तो इट मींस व्हाट, रिएक्शन एट ए एंड आर बी विल बी जीरो. अनिरुद्ध, हाँ यस सर. यस और नो? Yes sir. हाँ, Yes sir. ओके. चलो देखते हैं कि तुम लोग की कितनी बातें सत्य है. अगर हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या देखना था कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जीरो, एंड देयर इज अ मोमेंट इज जीरो. यही तीन कंडीशंस के बेसिस पे. तो एक्स की डायरेक्शन में कोई फोर्सेस है नहीं, वाई की डायरेक्शन में कोई फोर्सेस है नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या रिएक्शन आर ए प्लस आर बी जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये जीरो है? पीयूष? Yes sir. Yes. ठीक है. Now taking moment at point A, right? When we taking moment at point A, that will equal to 0. तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो क्या होगा, क्या आर बी इंटू एल जो कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा है, और ये मोमेंट आपका नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज दे रहा है, दैट इज माइनस एम इज इक्वल्स टू 0. यही इक्वेशन बनेगी क्या? It means what? The values of RB is equals to m by L, and likewise the reaction is equals to RA of minus minus M. B, that is of minus m by L. तो दोस्तों जो आपने मेरे को बोला, अनिरुद्ध हाँ सर. क्या हुआ? नहीं सर, वो मेरे से भूल गया है. मैं ये कह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी आपकी मोमेंट होने की वजह से? होगी होगी. तो क्यों बोला कि हाँ नहीं होगी? मैं किधर बोला? अरे तुम ही ने बोला कि हाँ नहीं होगी. नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला. ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो यार. हाँ, अरे नहीं मेरे सर, साथ सच में. मैं रिकॉर्ड इसीलिए करता हूँ ताकि मैं सच साबित कर सकूं. आपने किसको पूछा था सर? धैर्य मैंने को पूछा सबसे था पूछा था. ना. मैंने तो धैर्य से कहा था सिर्फ यस नो करते हो, मैंने तो थोड़ा पूछा था. तो वन थिंग इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, Yes sir. कि अगर मोमेंट भी है तो भी आपकी रिएक्शंस होगी एंड पॉइंट्स पे. हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका एक शियर फोर्स डायग्राम बनाना चाहें, शियर फोर्स, तो हमने एक सेक्शन कट किया x1, राइट? ये सेक्शन पे आपका माइनस m बाई एल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिल रहा है क्या? मिल रहा है ना? हाँ सर. क्लियर है? तो इसका मतलब इसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, अच्छा शियर फोर्स डायग्राम में मोमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. इसके लिए
जो आपका मैग्नीट्यूड होगा ये आपका -m/l होगा। तो क्या ये आपका एक shear force डायग्राम बनेगा क्या -m/l के रिस्पेक्ट में क्लास? Yes, sir. Is it clear to everyone कि when you have a point moment, then you have a shear force diagram which is of constant magnitude and its value is -m/l. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now this equation is valid for this, right? Now take moment at x, right? जब x sections पे moment हमने consider किया तो हमने क्या देखा कि this is defined as mx की वैल्यूज अगर हम ले रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं क्या that is RA into x, right? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा -m/l into x, हाँ या ना? So this प्लस equation m आएगा ना सर? RA की वैल्यू तो माइनस है ना, और ये तो अपवर्ड नहीं डायरेक्शन में नहीं, मोमेंट m आएगा ना? अभी कहाँ, अभी तो x सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं ना। ओके ओके। अभी तो हम यहाँ इसको लेके आगे ही नहीं बढ़े तो कैसे आ जाएगा मोमेंट, नहीं आएगा अच्छा ना। अच्छा, हाँ। लिमिट देखो, लिमिट ये यस लिमिट यस। कहाँ पे है आपकी 0 से x की वैल्यूज l/2, राइट? तो अब यहाँ पे अगर आप कंडीशंस देखोगे तो अब हमने क्या किया कि चलो यहाँ पे एक ड्रॉ करने की कोशिश की, ये वैल्यूज है। अब देखो कि जैसे जैसे वैल्यूज x की बढ़ती जाएगी तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा ना, राइट? क्लास, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब देखो, अब हमने क्या बोला कि mx की वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, ठीक है? क्या ये वैल्यूज आर ए, अब हमने यहाँ पे सेक्शन लिया x2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो आर ए इंटू एक्स आएगा क्या, ठीक है? प्लस अब ये इस वैल्यूज, ये सेम मोमेंट दे रहा तो वी कैन डिफाइन एज द वैल्यूज ऑफ प्लस। क्लियर है क्लास? हाँ। अब यहाँ पे यस अगर आप सर। देखो तो दिस वैल्यू इज डिफाइंड फ्रॉम l/2 से x to l, यस? अब ये वैल्यूज कितनी है -m/l इंटू एक्स प्लस m। पुट दिस वैल्यूज, अब हमने x/2 की वैल्यूज पे लिखा, लेट x इज इक्वल्स टू l/2 देखने की कोशिश कर। तो जैसे ही x इज इक्वल्स टू l/2 लिखा तो क्या ये इक्वेशन -m/2 प्लस m दैट इज डिफाइंड एज प्लस m मिलेगा क्या? इट मीन्स व्हाट कि ये जो वैल्यूज है ये फर्दर इंक्रीज कर जाएगी यहाँ तक, ठीक है? ये थोड़ा सा आगे तक जाएगा और अब इसके बाद जब वैल्यूज लोगे ना तो आपकी इक्वेशन बनेगी इस, जब आप x की वैल्यूज को कुछ नहीं करो, इसी इक्वेशन में x की वैल्यूज को l पुट करो तो क्या हो जाएगा -m प्लस m दैट वैल्यू इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू l, तो आपका बेंडिंग मोमेंट x की वैल्यू l पे क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स व्हाट, ये इक्वेशन बनेगी नेगेटिव और पॉजिटिव के बेसिस। ये बात सबको समझ में आई क्या? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये आ गई है तो एक और केस इसमें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, केस 2, राइट? और इन दैट केस आई वांट यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं किया है, दैट इज योर आर ए वैल्यूज है, आर बी वैल्यूज है, जो इसी पॉइंट पे सेंटर जो लोड लग रहा था तो हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया था। क्या आप बता सकते हो?
और आपको लगता है कि ये ऐसा होमवर्क है तो आप वो भी कर सकते हो। सर सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज होगा, हाँ, बेंडिंग मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज होगा। बेंडिंग मोमेंट का तो ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज होगा। आपको अगर मैं थोड़ा सा भी डिफाइन करूं तो हमेशा याद रखना कि आपका जो डायग्राम अभी बनेगा, देखो मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा शीयर फोर्स, राइट। रीजन ये है कि अब आरबी की वैल्यूज -m/l हो जाएगी और आरए की वैल्यू जो है m/l हो जाएगी, राइट। और जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करोगे तो here in this case this will be positive, this will go like this and it will come, this will your positive and this will be your negative. Is that clear to everyone? यस सर। Right? So class आप एक काम करो भाई, पहला important कि आप आज का जो भी डिस्कस